ابن صفی اردو ادب کا وہ مظلوم نام ہے جس کے مرنے کے 30-32 سال بعد کسی بہانے سے ہی اس کے نام پر ہماری زبان میں کہیں تو عود ڈالا جا رہا ہے۔ میرا اس بارے میں کسی کے خلوص کو شبہ نہیں کرتا، لیکن ایک الجھن کا اظہار ضرور کروں گا کہ ہم لوگ جو اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ابن صفی پر کسی ناقد نے توجہ نہیں دی، تو ہم خود اس بات کی تخلیق کرتے ہیں کہ ابن صفی پر ہم لکھ رہے ہیں، ابن صفی کے فن کے مختلف گوشوں کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، تو یہ خود بھی ایک بڑے نقاد کے ابن صفی کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ہی ہوا ہے۔ میری مراد شمیم حنفی سے۔ شمیم حنفی اردو کے بہت بڑے نقاد، انہوں نے غالباً سب سے پہلے جسے ادب عالیہ کہا جائے اس زمرے میں ابن صفی کی تخلیقات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ایک مضمون کی شکل میں۔ اس کے کہیں بعد جا کر ہم نے اتنی اخلاقی ضرورت پیدا ہوئی کہ ہم ابن صفی کو تسلیم کریں گے۔ کیا ابن صفی خود اپنی جگہ اتنی اہم نہیں تھا کہ ہم کسی شمیم حنفی یا کسی اور حنفی یا شافعی کے کہنے کے بغیر بھی ابن صفی کی عظمت کو تسلیم کرتے؟ یہ ہمارے اپنے تخلیق پرستانہ روایات ہیں جس سے مفر ممکن نہیں۔ بہرحال دیر آیت درست آیت کے مصداق ابن صفی کے فن کا، ان کے فنی عظمتوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ اس میں تمام ناقدین متعصب بھی نہیں ہیں۔ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ناقد ابن صفی کے تعلق سے متعصب نہیں رہا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنے مضامین میں ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، یا ابن صفی کے ناولوں کے کوٹیشنز اپنے تنقیدی مضامین میں کیوں نہیں دیے، یہ بالکل الگ ہی بحث ہے، لیکن اس سے ناقدین پر تعصب کا الزام تو ہرگز نہیں لگایا جا سکتا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پچھلے برس ابن صفی پر ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا، سیمینار کا، تو اس میں تقریباً 8-10 مشہور ناقدین نے اپنے پیپرز پڑھے۔ صرف ایک علی احمد فاطمی ایک ایسے نقاد تھے جنہوں نے ابن صفی کے ادب کو دوسرے درجے کا ادب کہا۔ ان کے علاوہ کسی ناقد نے، ان میں فضیل جعفری ہوں یا اور بھی بڑے بڑے ناقد شمیم حنفی ہوں یا خالد سعید ہوں، کسی نے بھی ابن صفی کے ادب کو دوسرے درجے کا ادب نہیں کہا۔ تو ناقدین متعصب نہیں ہیں، البتہ یہ اس صنف کی تنقیدی مضامین کی اپنی ایک کمزوری ہے کہ جب تک کوئی چیز ہمارے زمانے کے معیار پر، ہمارے زمانے کی میزان پر پوری نہیں اترتی، وہ چاہے اپنی جگہ آپ اسے کتنا ہی عظیم تسلیم کر لیں، لیکن جب تک وہ چیز اپنے آپ کو وقت سے نہیں منواتی، اس وقت تک تنقید نگار اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ دل میں وہ اس کے قائل ضرور ہوتے ہیں۔ آپ اسے تنقید نگاروں کی مصلحت پرستی کہہ لیں یا ہماری تنقید کے مزاج کی خامی کہہ لیں، بہرحال یہ چیز ہے۔ ابن صفی چند اہم گوشے کے تحت صرف ابن صفی کے جاسوسی ناولوں کو موضوع نہ بنایا جاتا، ان کے اظہار کا دوسرا ذریعہ شاعری رہا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی جاتی تو بہت اچھا تھا۔ دراصل ابن صفی بنیادی طور پر ناول نگار نہیں تھے، بنیادی طور پر شاعر تھے۔ اپنی ادبی زندگی انہوں نے شاعری سے شروع کی۔ تو ناول نگار ابن صفی نے شاعر ابن صفی کو ہائیجیک کیا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس کڑوا میں ہیں، جیسے شاعر یوسف صفی کو ڈرامہ نگار یوسف صفی نے ہائیجیک کر لیا، یا شاعر محمود شاہد کو افسانہ نگار محمود شاہد نے ہائیجیک کر لیا۔ اسی طرح شاعر ابن صفی کو ناول نگار ابن صفی نے ہائیجیک کیا ہے۔ اور ایک اہم بات جس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دلائی، وہ یہ کہ ابن صفی نے جاسوسی ناول لکھنے کا خیال کیوں کیا۔ ابن صفی کے بارے میں جتنے مضامین آتے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1952 میں عباس حسینی کے ادارے نکھت میں ایک بحث شروع ہوئی کہ اس دور میں اردو میں جنسی ناولوں کی، گھٹیا ناولوں کی بہتات آئی ہوئی تھی، طوفان تھا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اردو زبان، اردو فکشن اس حد تک گر چکا ہے کہ اس میں سوائے جنسی ناولوں کے کوئی چیز نہیں چلتی۔ تو اس بات کو غلط ثابت کرنے کا
गलत साबित करने के लिए इब्न सफ़ी और उनके चंद दोस्तों ने, जिनमें आबुल रशीद भी, अब्बास हुसैनी भी, इब्न सफ़ी भी शामिल थे, तो उन्होंने यह ख्याल किया कि कुछ ऐसा हट के फिक्शन दिया जाए जो आवाम को भी मुतासर करे और उसमें अदबियत की चाशनी भी कुछ ना कुछ हो। तो इस तरह इब्न सफ़ी ने एक अंग्रेज़ी नावल से महफूज अपना पहला नावल दिल लिखा। अक्सर जगह आपने जहाँ पर इब्न सफ़ी की तहरीरों के मखसूस रंग को पेश किया है, तो सिर्फ 3 किरदारों को अपने सामने रखा है, फरीदी, हमीद और इमरान। आपने अक्सर जगह फरीद और हमीद पढ़ा है, फरीदी और हमीद और फरीदी। फरीदी, हमीद और इमरान, इन तीनों किरदारों के आईने में आपने इब्न सफ़ी के तहरीरों की खूबियाँ, उनकी अखलाकियात या उनके अदब की इफादियत, इनको तलाश करने की कोशिश की है। मेरा मारूज़ा ये है कि सिर्फ फरीदी, हमीद और इमरान ही इब्न सफ़ी की कायनात नहीं है। ये बेशक मरकज़ी किरदार हैं जिनके ज़रिए इब्न सफ़ी ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, लेकिन इन मरकज़ी किरदारों से कम नहीं तो इनके बराबर बहुत से ज़ैली किरदार ऐसे हैं जो क़ारी के जहन में इन तीनों किरदारों के बराबर ताकतवर और सलामत हैं। सिंघी हो या कासिम हो या जोज़फ़ हो, आम तौर पर मिसाल हो। इसके अलावा कुछ नेगेटिव किरदार भी उन्होंने ऐसे पेश किए हैं, जैसे सिंघी है, वो खुद एक नेगेटिव किरदार है, या थ्रेसिया है, एक नेगेटिव किरदार है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नेगेटिव किरदार उन्होंने पेश किए हैं, जैसे लाशों का आबशार, उसका जो मेन नेगेटिव किरदार है, मनफी किरदार है, डॉक्टर नारंग। डॉक्टर नारंग इतना ताकतवर किरदार है कि इस किरदार के सामने उस नावल की हद तक फरीदी का किरदार भी फीका होता है। फरीदी को आप इब्न सफ़ी का एक नाम है, फरीदी के किरदार को मैं बहुत अहम किरदार नहीं मानता, दुनिया मानती होगी, मैं नहीं मानता। मेरा इख्तलाफ इसलिए कि इब्न सफ़ी ने फरीदी को इस तरह पाला है जिस तरह एक सख्तगीर बाप अपने बच्चे को बचपन से ही पाल पाल कर उसमें अपने ख्यालात ठौंस कर उसे अपना अक्स बना लेता है। उसकी अपनी इनफरादियत, उसका अपना जज्बात और एहसासात को उभरने नहीं देता। एक सख्तगीर बाप अपनी औलाद के साथ जो करता है, वही काम इब्न सफ़ी ने फरीदी के किरदार के साथ किया है। फरीदी का किरदार उनका एक तख़य्युली किरदार, जिसमें उन्होंने तमाम वो बातें पेश कर दी हैं जो उनके अपने तजुर्बे में थी, जो वो समझते थे कि ऐसा होना चाहिए। और फरीदी के किरदार की तख्लीक का एक बड़ी वजह हमारे मुल्क की तक़सीम भी है। खुद इब्न सफ़ी ने कई जगह इस बात का इतराफ़ किया है कि तक़सीम के बाद के जो हालात थे, नाक़ानूनियत का जो दौरा था, उन हालात ने उन्हें इतना मुतासिर किया कि वो फरीदी के किरदार को तख्लीक करने पर मजबूर हुए। तो यहाँ इब्न सफ़ी से मेरी शिकायत यही कि उन्होंने फरीदी के किरदार को अलग से फलने फूलने का मौका नहीं दिया। मेरी नज़र में फरीदी का किरदार 100% तख़य्युलाती किरदार है, जिसमें इंसानी जज्बात और एहसासात की बशरी कमज़ोरियों की कोई झलक नज़र नहीं आती। वो लांडे से धुला धुलाया दस्तिया हुआ निकला हुआ सूट मालूम होता है। तो इस लिहाज से फरीदी का किरदार मसनूई है। इसके मुकाबले में हमीद का किरदार हो या इमरान का किरदार हो या सिंघी और थ्रेसिया या जूलिया या सफदर के ज़ैली किरदार हो, इन किरदारों में इब्न सफ़ी ने इंसानी बशरी कमज़ोरियों को भी पेश किया है और इंसानी अखलाक की रिफ़तों को भी। जबकि आप फरीदी में सिर्फ इंसानी अखलाक की रिफ़तें देखते हैं, और ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई इंसान इतना अपनी हद तक परफेक्ट हो। ये तो फरिश्तों का मामला है, और जब इंसान फरिश्ता बन जाता है तो वह अपने दर्जे से गिर जाता है, क्योंकि फरिश्ता इंसान फरिश्ते से ज़्यादा अज़मत रखने वाली मखलूक है। अगर इंसान ने फरिश्ता बनने की कोशिश की या हमने हमारे किसी किरदार को फरिश्ता बना दिया, तो वह हमने उसकी अज़मत का एतराफ़ नहीं किया, उसकी अज़मत से इनहराफ किया। तो ये बातें इब्न सफ़ी के इस रवैये के बारे में जिसमें उन्होंने फरीदी के किरदार को हाईजैक किया है। और जहाँ तक ये ईजादात का तसव्वुर उसका सवाल है, इसके बारे में हम यकीन से कोई बात नहीं कह सकते। शायर हो या अदीब हो, उसे अल्लाह ने क़ुव्वत मुतख़य्यला आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा दी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था इसी इजलास में
कि जहाँ पर साइंस की हदें ख़त्म होती हैं वहाँ से अदब और शायरी की हद शुरू होती है। तो हो सकता है इस तरह, क्योंकि इब्न सफ़ी ने साइंस फिक्शन भी लिखा है तो कई चीज़ें उन्होंने पेश की हों, लेकिन उनके कई बातें जिन्हें हम लोग ईजादात का तसव्वुर समझते हैं वो ईजादात का तसव्वुर नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्काई लैब का तज़किरा इब्न सफ़ी ने अपने नावलों में कई जगह किया है, ये उनका तसव्वुर नहीं था। उस ज़माने में स्काई लैब के टूटने की बात आम हो चुकी थी। अलबत्ता आम लोग ये सोचने से कासिर थे कि स्काई लैब टूट जाएगा, मदार से गिर कर ज़मीन पर गिरेगा तो उसकी क्या तबाहियाँ हो सकती हैं, इस बात से आम आदमी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। इसको फिक्शनलाइज किया था इब्न सफ़ी ने, जहाँ एक नावल में थ्रेसिया अमेरिका और रूस के साइंसदानों को, बड़े लोगों को ये धमकी देती है कि अगर तुमने हमारे मुतालिबात पूरे नहीं किए तो तबाहशुदा स्काई लैब के टुकड़े वाशिंगटन पर या न्यूयॉर्क पर या मॉस्को पर गिरा दिए जाएंगे। तो इस हद तक आम इंसान का फिक्शन का ख्याल, इसको फिक्शनलाइज नहीं किया था आम इंसान ने, इसे इब्न सफ़ी ने किया है। और आपने ये भी कहा कि इब्न सफ़ी के किरदार मिसाली किरदार हैं जिनके तवस्सुत से इब्न सफ़ी ने अखलाकियात का दर्स दिया है। तो ये किरदार, उनमें औरतों का तज़किरा या शराब का या गिरी हुई हरकतें इनसे नहीं होती। ये तमाम चीज़ें आपने सिर्फ इन तीनों किरदारों को मद्देनज़र रखकर कही हैं, वरना इब्न सफ़ी के जितने ज़ैली किरदार आप ले लें वो बुराइयों की पोट हैं, गंदगी की पोट हैं, सब कुछ है उनके पास। वो मुजरिम भी है, कातिल भी हैं, साजिशी भी हैं, ज़ानी भी, जुआरी भी। लेकिन ये इंसान की शख्सियत का एक अक्स था जो इब्न सफ़ी ने उन किरदारों के ज़रिए पेश किया। तो आप किसी मुसन्निफ़ के तहरीरों का तज्ज़िया करते हुए सिर्फ चंद मखसूस किरदारों को सामने रखें और ये कहें कि यही चीज़ें इस मुसन्निफ़ की तहरीरों में हैं तो ये महल नज़र होगा। इब्न सफ़ी ने ऐसा नहीं। इब्न सफ़ी ने अगर फरीदी के मामले में गलती की है कि उसको फरिश्ता बनाकर पेश किया है तो उस गलती का इज़ाला यूँ किया है कि अपने ज़ैली किरदारों में उन्होंने इंसान की जितनी अखलाकी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं उन तमाम कमज़ोरियों को भी पेश किया है। अच्छी बात ये कि इन कमज़ोरियों को पेश करते हुए इब्न सफ़ी ने बुराइयों की तरफ रग़बत नहीं दिलाई। ज़ेरी लहरों में, बैनुस्सुतूर में क़ारी के दिल में ये एहसास पैदा किया है कि ये बुराइयाँ हैं, इनसे बचना ज़रूरी। ये बहुत बड़ी बात है जो बुराइयाँ पेश करने के, आमतौर पर बुराइयाँ पेश करने में एक बेपनाह कशिश होती है जिसमें क़ारी उस कशिश की तरफ राग़िब हो जाता है और बुराइयों के गलत पहलू की तरफ नहीं जाता। इब्न सफ़ी का कमाल ये था कि उन्होंने बुराइयाँ पेश करते हुए भी क़ारी के दिल में तनफ़्फ़ुर का एहसास पैदा करने में कामयाबी हासिल की कि ये बुराइयाँ ही हैं, इनको किसी सूरत में बुराइयाँ कहा जाना चाहिए। एक और जगह आपने कहा कि इब्न सफ़ी ने हर जगह क़ानून का एहतराम किया है या इब्न सफ़ी के किरदारों ने हर जगह क़ानून का एहतराम किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इब्न सफ़ी के मेन किरदारों में, जिनको आप अपना आइडियल किरदार मानते हैं, फरीदी ने, हमीद ने, इमरान ने, कई नावलों में क़ानून को तोड़ा है। लियोनार्ड की वापसी में लियोनार्ड के पहुँचे उतार देना, लियोनार्ड के पैरों को इस तरह तोड़ देना कि वो कभी सेट ना हो सके, दुनिया का कोई कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। फरीदी ने ये किया। ऊँचा शिकार में किसी एक बहाने की वजह से ऊँचा शिकार का जो मर्कज़ी किरदार होता है उसको इश्तियाल दिलाकर, उस किरदार को गुस्सा दिलाकर उसका क़त्ल करवाना सदर के बॉडीगार्ड्स के हाथों से, कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। फरीदी ने खुद ये किया है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फरीदी के किरदारों ने क़ानून को नहीं तोड़ा है, लेकिन एक छूट उन्हें ये ज़रूर दी जा सकती है कि फरीदी के किरदारों ने क़ानून को तोड़ा भी है तो क़ानून की पासबानी के लिए क़ानून को बनाए से ऐसी जगह जहाँ पर क़ानून, फरीदी ने कई जगह अपने मुकालमों में इजहार किया है कि मैं जहाँ क़ानून मुझे बेबस नज़र आने लगता है वहाँ मैं अपने क़ानून वज़ा करने लगता हूँ। तो अगर आप इसको बिल्कुल क़ानूनी मामले से देखें तो ये भी गलत है। आजकल के जो सेल्फ स्टाइल्ड एनकाउंटर्स हो रहे हैं वो इस बात का सबूत है। अगर इस रवैये की इजाज़त दे दी जाए कि जहाँ आपको क़ानून बेबस नज़र आए वहाँ आप अपना क़ानून लागू कर लें, तो कितने ऐसे ईमानदार अफसर होंगे जो किसी एक कातिल को, जो हकीकी मानने में कातिल हो, जो सज़ा से बच गया हो, उसे अपने तौर पर क़ानून वज़ा करके किसी एनकाउंटर में मार दें, वरना आमतौर पर मासूम एनकाउंटर में मरते हैं। अगर उस रवैये की इजाज़त दी जाए तो इसमें दुनिया में लाक़ानूनियत का जंगल बन जाएगी दुनिया। यहाँ ज़रूर इब्न सफ़ी ने अपनी हदें पार की हैं। यहाँ उन्होंने एतदाल का ख्याल नहीं रखा, यहाँ उन्होंने शिद्दत पसंदी को
हवा देने की कोशिश की है। ये और बात है कि ये चीज़ें उनकी तहरीरों में इतनी कम हैं कि उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। इब्न सफ़ी का सबसे बड़ा एजाज़, सबसे बड़ी खसूसियत उनकी वो अदब की चाशनी, मौजू, मकसद, इस्लाहियत, समाजियात, सब इसको अलग गट्ठर बात के एक तरफ रखिए। इब्न सफ़ी आपको मुतासिर करता है तो पहली नज़र में इसलिए मुतासिर करता है कि उसकी तहरीरों में अदब की चाशनी है। तो अदब वो बुनियाद है जिसकी वजह से इब्न सफ़ी के नावल इतने मकबूल हुए। ये भी कहा गया इब्न सफ़ी के नावलों के बारे में, मुजावर हुसैन रज़वी ने कहा कि इब्न सफ़ी के नावल इस लिहाज से ख़तरनाक कहे जा सकते हैं कि ये खाली को एडिक्शन की सरहद तक पहुँचा देते हैं। यानी मुजावर हुसैन रज़वी ने यह कहा था कि जिस तरह एक आदमी चरस या गांजे या हेरोइन का आदी हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, इस तरह उर्दू पढ़ने वाले भी इब्न सफ़ी के नावलों के एडिक्ट हो जाते हैं, उसकी लत लग जाती है इब्न सफ़ी। इस लिहाज से इब्न सफ़ी, ये मेरा ख्याल नहीं, मुजावर हुसैन रज़वी ने कहा था। तो इन बातों के अलावा जिस बात पर ख़ुद इब्न सफ़ी ने तवज्जो नहीं दी, आपको थोड़ी बहुत तवज्जो देनी चाहिए, वो ये बहसीत शायर इब्न सफ़ी का मुकाम है। इसलिए कि इब्न सफ़ी जो कुछ है, इब्न सफ़ी नावल निगार बने या कुछ भी बने, वो कुछ भी बन जाए, जो कुछ वो बना है वो शायरी की वजह से बना है। इब्न सफ़ी में शायरी का उमल का बुनियादी चीज़ थी, शायरी का हुनर वो बुनियादी खुदादार अतिया था, जिसकी वजह से इस हुनर को उन्होंने फ़िक्शन में ढाल कर अपना नाम पैदा किया। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इब्न सफ़ी का अदब दूसरे दर्जे का अदब हरगिज़ नहीं है। इब्न सफ़ी के नावलों में कई ऐसे जुमले आपको मिलेंगे जो ज़बान बयान के लिहाज से बेहतरीन होंगे, जहाँ पर तंज़ का इंतहाई लतीफ़ इज़हार होगा, जहाँ पर मानी की ज़ेरी लहरें इतनी होगी कि आप सोचते जाएँ उसमें नए नए मानी। जिस तरह अच्छे शेर की खसूसियत होती है कि उसमें एक से ज़्यादा मानी हो, इब्न सफ़ी के कई जुमले आप कोट कर सकते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जहाँ जितना आप सोचते जाएंगे नए नए मानी उसमें खुलते जाएंगे। तो अदबियत वो पहली चीज़ है, अदबी खूबसूरती, अदबी हुस्न वो पहली चीज़ है जिसकी वजह से इब्न सफ़ी बना है। और ये अदबियत इब्न सफ़ी में शायरी के मलके की वजह से आई है। अपने इब्तदाई दौर में उन्होंने एक गज़ल कहकर अपने दोस्तों को सुनाई थी। तो उसका एक शेर सुनकर इब्न सफ़ी के दोस्तों ने कहा था कि तुम्हारा नहीं, फिराक गोरखपुरी का शेर है, तुमने छुपा लिया है फिराक की गज़ल से। तो इब्न सफ़ी ने बाद में वो पूरी गज़ल पेश की थी, तब कहीं जाकर दोस्तों को यकीन आया था कि फिराक का नहीं, इब्न सफ़ी का शेर। तो ये जो मवाजना किया गया, ये मवाजना ख़ुद इस बात का सबूत है कि इब्न सफ़ी अपनी शायरी के इब्तदाई दिनों में ही इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी शायरी करते थे कि उनकी शायरी पर फिराक की शायरी का धोखा होता था। ये तमाम बातों को समेटते हुए इब्न सफ़ी का वो बहुत हसीन शेर आपकी नज़र करता हूँ। लबें उदास चरागों पे सोग तारी है, लबें उदास चरागों पे सोग तारी है, ये रात आज की इंसानियत पे भारी है।